बच्चों हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 13 महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट. This is very important chapter because it is telling us the contribution of Gandhi in the national movement, and also we can see how much oppressive the Britishers were, as we have seen the previous classes also of social science, how brutal the Englishmen were there. So here we are going to study about the salt satyagraha. What was salt satyagraha? We will see about that. First we will see the few movements which came before this particular satyagraha. Simon Commission, General Simon came from England, and they made one commission just to make the laws for the India, and not a single member was Indian. So it was opposed by the Indians when it came in 1928, and he was welcomed by the slogan "Go back Simon." उनको "Go back Simon" जो स्लोगन है उससे वेलकम किया गया उनका, मतलब पीपल वर नॉट वांटिंग हिम एज द हेड ऑफ द कमीशन विच इज़ सपोज टू मेक द लॉज फॉर इंडियंस. इंडिया के लिए, लोगों के लिए लॉ बनाने के लिए साइमन कमीशन आया, जिसको लोगों ने एडमायर नहीं किया, अप्रिशिएट नहीं किया, क्योंकि हमारे लिए लॉ बना रहे हैं एंड नॉट अ सिंगल मेंबर वॉज इंडियन. देन देयर वाज द इंसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन दैट वाज इन दिसंबर 1929. दिसंबर 1929 में एक लाहौर सेशन हुआ था. इट वॉज बेसिकली इट वॉज सेशन ऑफ द कांग्रेस. सो टू मेन फीचर्स वर देयर फॉर द Lahore session. Nehru was selected as the president. So here we can see young generation was going to be the part of the Congress. Young generation के जो लोग थे वो कांग्रेस में आगे आ रहे थे as a leader. And the next one, proclamation of the commitment to पूर्ण स्वराज और complete independence. और जो proclamation, जो एक confirmation था, एक commitment जो किया गया था पूर्ण स्वराज, that was done. So these two were the main things. Nehru was elected as president, and there was a proclamation of the commitment to the Purna Swaraj or complete independence. So these two were the main features of Lahore session. बच्चों, sometimes what happens, the questions can come in the map also, कि where the Lahore session was held. So of course it would be in the Lahore only. Lahore is a part of Pakistan. So you need to mark the place in Pakistan, and when suppose what they can do, they can give the particular date. December 1929. So you have to recognize, you have to resemble that this date was for the Lahore session only. So this need to be done. The Independence Day was observed on 26 January 1930. हम गांधी ने कहा कि भाई 26 जनवरी 1930 को हम एज अ इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व करें, और उस दिन क्या करें, फ्लैग होस्टिंग करें और लोगों को कम्युनिकेट करें, जगह जगह हम ऐसे लोगों को एडवर्टाइज करें अबाउट द ट्रेडिशनल वे, बीटिंग ड्रम बजाएं, तो इस तरह का एक माहौल क्रिएट करें इंडिपेंडेंस का. So this was the thinking of Gandhi, that if we are going to create the atmosphere for the freedom, only then it will be created. So क्या कहा गया कि इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया जाए 26 जनवरी 1930 को, एंड नेशनल फ्लैग वॉज होस्टेड एट द टाइम. नेशनल फ्लैग होस्ट किया जाएगा. देन गांधी जी एडवाइज द पीपल टू अरेंज मीटिंग्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर मेकिंग द एडवर्टीजमेंट ऑफ द ट्रेडिशनल वे, बीटिंग ड्रम्स, होस्टिंग फ्लैग. गांधी ने क्या कहा, गांधी ने एडवाइस किया कि लोग मिलकर मीटिंग करें, और उस मीटिंग में क्या करें, मीटिंग में मिलकर किस तरह से हम अपने नेशनलिस्ट को आगे बढ़ा सकते हैं उसकी बात करें. तो उसके लिए क्या करना है, अरेंज मीटिंग्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड breaking the organized and making the advertisement in the traditional way, beating drums, hosting flag. ड्रम बीट करना और फ्लैग होस्ट करना, ये सारे आपके इंडियन ट्रेडिशन के ओल्डन पार्ट है. तो दैट्स व्हाट ही सेड कि दैट वी हैव टू कलेक्ट टुगेदर, एंड दोज हु आर द just intellectual ones or those who are the radicals, what they need to do, they need to collect the people, and they need to intimate them about the traditional way of India by beating drums and the hosting flags. So people were divided, they were directed to do the creative work. क्या डायरेक्ट किया गया उनको कि आप लोग क्रिएटिव वर्क करें. So it should be productive for us and it should be beneficial. तो क्या हो सकते हैं वो, you can do the spinning, you can service of the untouchable. Especially गांधी जी का बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था उन अनटचेबल्स के साथ में जो अंडर प्रिविलेज हैं, जिन्हें कोई प्रिविलेज नहीं मिला. सो these were the things why they were doing spinning and the service of untouchables. It was the main creative work which was done by him. Then there was
गांधी जी की दांडी यात्रा विच वॉज अ मेन पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी की दांडी यात्रा इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बनी। सो व्हाट ही डिसाइडेड कि हम किसी ऐसी चीज़ को चुने कि भाई ब्रिटिशर्स हमारा एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, बट वी हैव टू सेलेक्ट द थिंग जिसको लेकर सभी लोग सफ़र होते हो। तो नमक एक ऐसी चीज़ है जिसको मिडिल क्लास, हायर क्लास, लोअर क्लास, एवरी क्लास इज़ यूज टू टेक, वो लेते हैं और का यूज़ आता है। तो इंडिया में क्या था, दे पुट द टैक्स ऑन द साल्ट एंड इट वॉज डिनाइड फॉर द इंडियंस टू मेक द साल्ट। नमक बनाना मना था, इट वॉज द साल्ट लॉ। ये साल्ट लॉ था जिसमें इसके तहत जो नमक है उसको बनाना मना है। सो इट वॉज अ क्राइम फॉर द इंडियंस, इफ दे आर गोइंग टू मेक द साल्ट देन दे आर गोइंग टू बी पनिश्ड। सो फॉर दैट व्हाट गांधी जी डिड, दांडी में क्या किया गांधी जी ने, गांधी जी डिक्लेयर्ड ही वुड लीड द मार्च। अब गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि उस मार्च को लीड करेंगे जो दांडी तक जा रहा है, टू ब्रेक द साल्ट लॉ। क्या करने के लिए, साल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए। अब क्यों ऐसा करना है, पीपल वर नॉट अलाउड टू मेक साल्ट फॉर डोमेस्टिक यूज। अब लोगों को अलाउड नहीं था कि वो साल्ट को अपने घर के डोमेस्टिक यूज के लिए बनाए। सो व्हाट वाज डन, ही मोबिलाइज अ ह्यूज अपोजिशन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो गांधी जी ने क्या किया, एक बड़ा अपोजिशन क्रिएट कर लिया ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, बिकॉज मोस्टली द पीपल वर यूजिंग साल्ट and they were not allowed to make the salt for the domestic use। वो उसको अपने डोमेस्टिक यूज के लिए नहीं बना पा रहे थे। सो ही mobilized a huge number of people, those who were against the law। Then what happened, with the salt law, people were not allowed to make salt for the domestic use। He mobilized a huge opposition against British law। गांधी जी informed Lord Irwin। अब Lord Irwin जो वहाँ के वायसराय थे, गांधी जी ने उस मार्च के बारे में कि हम मार्च करने जा रहे हैं, हम दांडी मार्च करेंगे, हम लॉ ब्रेक करेंगे, इसके बारे में लॉर्ड इरविन को प्रायर इन्फॉर्म कर दिया, बट ही डिड नॉट टेक इट सीरियसली। उसने उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी। किसने, लॉर्ड इरविन ने। देन गांधी जी स्टार्टेड दैट पर्टिकुलर यात्रा, दैट ऑन 12th March 1930 को, this was the date when he started the yatra from ashram to at Sabarmati। साबरमती से दांडी तक की यात्रा, सी शोर एरिया है, वहाँ पे उन्होंने जाके अ फिस्टफुल, मुट्ठी भर जो था साल्ट बनाया और लॉ तोड़ा 3 हफ्ते की यात्रा के बाद। इट मीन्स 3 weeks कंटिन्यूसली ही वॉज इन द जर्नी एंड द पीपल फ्रॉम वेयर ही वॉज जस्ट moving, the people were watching him and they all were belonging with the Gandhi, and after the struggle of 3 weeks he made the fistful salt। So see, salt सत्याग्रह के हिस्ट्री में क्या पढ़ा हमने, साइमन कमीशन came to India। साइमन was the very cruel person, and what he did, that he said that there is a commission and who is going to be head of that, and they are going to be the English members only, no Indians were there। So of course it was injustice with the Indians that they were not allowed to be the part of that Simon Commission जो इंडिया के लिए लॉ बना रहा है। तो आप बताइए कि कितना ये ब्रूटल थिंग है कि when someone is going to make law and we are not the part of that। So it was welcomed by the Go Back Simon slogan in 1928। Then लाहौर सेशन की बात करी दिसंबर 1929 में, then Nehru became the president of the Congress and the Poon Swaraj and complete independence was commitment जो था that was proclaimed। Then Independence Day was observed on 26/1/30। गांधी जी ने कहा we need to host the flags also, मीटिंग्स अरेंज करें हम, उसमें क्या करें, ट्रेडिशनल वे को ड्रम बजाएं, फ्लैग होस्ट करें, क्रिएटिव वर्क करें। कैसे करें, स्पिनिंग करें या फिर हम अनटचेबल्स की सेवा करें, सर्व करें। दैट वाज द मेन मोटो ऑफ द गांधी। सो गांधी जी ने कहा कि नाउ ही इज़ गोइंग टू गिव द लीडरशिप इन द दांडी मार्च एंड ही इज़ गोइंग टू ब्रेक द साल्ट लॉ। क्योंकि साल्ट क्या था जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए लोग बना नहीं सकते थे, देयर वॉज अ लॉ कि नो बडी इज अलाउड टू मेक द सॉल्ट। तो क्या हुआ फिर, देन गांधी जी इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज मार्च टू द ब्रिटिशर जो कि वायसराय थे लॉर्ड इरविन, बट लॉर्ड इरविन ने इसको बहुत लाइट लिया। ही डिड नॉट एक्सेप्ट इट्स इम्पोर्टेंस। देन आफ्टर इंफॉर्मेशन गिवन टू द that particular Lord Irwin, Gandhi ji started and in 1930 he started the yatra from the ashram of Sabarmati to Dandi। की सी शोर पे गए वो और फिस्टफुल जो साल्ट था
एक मुट्ठी भर साल्ट बना के उन्होंने कानून को तोड़ा. So this was the main thing that was done during salt law, and the ultimate thing, the last, what was the result of that? That salt was made, कि नमक बनाया गया. So in such a way we can say कि गांधी जी played a very important role, and main basic role of him was that he was very near dear to the poor ones. जो आपका लोअर क्लास है, जो आपके शेड्यूल कास्ट हैं, जो आपके अनटचेबल्स हैं, उनको उन्होंने अफेक्शन देखी, उनके साथ होके जो महात्मा की उपाधि, उनको बाबा की उपाधि मिली, बापू कहा गया, तो इट वॉज हिज अफेक्शन टुवर्ड्स दैम ओनली. सो दिस वॉज द मेन रीज़न. जब उन्होंने मास को इकट्ठा किया, जो अलग अलग पर्टिकुलर स्फीयर के लोग थे, उन्हें इकट्ठा किया, देन ही जस्ट वॉज एबल टू कलेक्ट द ऑल टुगेदर अगेंस्ट द पर्टिकुलर ब्रिटिश एम्पायर. तो उसके लिए क्या था, उन छोटे छोटे तबकों को जो हमारी पॉपुलेशन का मास कवर करते हैं, दे हैव टू बी द पार्ट ऑफ द मूवमेंट, ओनली देन वी वुड एबल टू गेट द फ्रीडम. So this was the main thing that was done by the Mahatma Gandhi. Further we will see the more steps like Quit India movement and all about that, and it will be the next part. But till now whatever we have studied, you have to read from the NCERT, because in the NCERT the things are given in detail. So you have to write your answer according to the demand of the question. If the question is of 1 mark, simple 1 or 2 line answer, 3 mark, 5 mark accordingly. So first for that all you need to understand the concept first. उस कंसेप्ट को जब तक आप समझ नहीं पाते हैं, तब तक आपको प्रॉपरली वो आंसर अडॉप्ट नहीं कर पाते, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, आंसर नहीं कर पाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड स्टेप बाय स्टेप यू नीड टू मेमोराइज द थिंग्स. मैप वर्क ऑल्सो वेयर विच वॉज located, so you have to do the map practice also, because map based questions are also coming in history, so you have to prepare for that. So that's all for today. Do revise and don't forget to make the notes. Whenever we will have the interactive class, we will discuss more about the topic. Thank you so much.